مفتی صاحب کے توسط سے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ صدر محترم کی اجازت سے میں اپنا مقالہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مقالے کا عنوان ہے 20ویں صدی میں گجرات کا اردو ادب اور شاعری۔ مکرم سامعین، اردو زبان پر کسی خاص قوم، خاص مذہب یا کسی خاص خطے ارض پر سکونت پذیر لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ مختلف طبقات کے لوگوں نے اسے اپنا ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ ایک طرف وقت کے حکمرانوں نے اس کی زلفیں سنواری ہیں تو دوسری طرف کاسے گدائی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے گداگروں کے اس نے آنسو پوچھے ہیں۔ کبھی رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے آنگن میں نظر آئی ہے تو کبھی اقبال کے شاہین کے ساتھ محو پرواز۔ ایک طرف خانقاہوں میں بندگان خدا کو خدا سے جوڑا ہے تو دوسری طرف رزمگاہوں میں غازیوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے میں مثالی کارنامہ انجام دیا ہے۔ چنانچہ اہل گجرات بھی اس بحر بے کنار سے مستفید ہونے سے پیچھے نہیں رہے۔ اہل گجرات کی مادری زبان گجراتی ہے اور سرکاری دفاتر میں عموماً انگریزی زبان مستعمل ہے۔ پھر بھی روز اول سے اردو کا درخشاں ستارہ گجرات کے افق پر جگمگاتا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے اردو ادب اور شاعری کے حوالے سے اگر بات کریں تو سینکڑوں ادبا اور شعراء نے امرا کی تاریخ پر لازوال نقوش چھوڑے ہیں۔ گجرات میں مختلف طبقات کے لوگوں نے مختلف شہروں میں مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کر کے اسے نئی بلندیاں عطا کی ہیں۔ احمد آباد کے علاوہ سورت، بڑودہ، جمبوسر، کرول، آمود، مانگرول، پالنپور، بھروچ، مہسانہ، جامنگر، نوساری، جوناگڑھ، کھمبات اور داہود وغیرہ مختلف اضلاع میں نہ صرف اردو بولنے والے موجود رہے ہیں بلکہ اردو کو نظم اور نثر کی صورت میں بیش قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے۔ گجرات کا جائے وقوع ساحل سمندر ہونے کے سبب گجرات بھارت کا عظیم تجارتی مرکز رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک اور بیرون ملک سے لوگوں کی یہاں آمد و رفت رہی ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار، راجستھان اور مہاراشٹر کے علاوہ ملک کے مختلف صوبوں سے بھی لوگوں نے یہاں سکونت اختیار کی اور یہاں کا ماحول اور یہاں کی آب و ہوا ایسی راس آئی کہ یہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں اور یہاں کے ادبی ماحول میں انہوں نے بھی ادبی خدمات انجام دی۔ گجرات میں کیسا ادبی ماحول تھا اس کا اندازہ اس ایک شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے دل آ تجھے میں لے چلوں رخیال میں، اے میرے دل آ تجھے میں لے چلوں رخیال میں، 150 شاعر ملیں گے ایک ہی چال میں۔ یہ ہمارا گجرات کا ادبی ماحول تھا۔ 20ویں صدی میں گجرات کے جو شعراء اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، ان میں فخر گجرات جناب فخر احمد آبادی، کلیم احمد آبادی، راز صدیقی شاہجہاں پوری، حکیم بشیر احمد خان زخمی احمد آبادی، خلیل احمد آبادی، حزیر قریشی، محمد نذیر نصیری فیض آبادی، کامل چشتی احمد آبادی، وحید بنارسی، عیسیٰ خان اشتر، عاشق جونپوری، خداداد خان وحشی، عادل دہلوی، ضیاء ناگوری، مرزا کوثر بیگ، منشی نسیم احمد صدیقی، کامل امروہی، زوار حسین احمد، قمر احمد آبادی، خیال قریشی، بیکر جونپوری، تاج ٹونکی، کامل جونپوری، شاطر اسلامی، محمود ماہر، شور الہ آبادی، نادم اندوری، شمس قریشی، رحمت امروہی، اظہر احمد آبادی، سرشار بلند شہری، فنا پرتاپ گڑھی، نیز نفیس دامپوری کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی شعراء کی فہرست بہت طویل ہے جن کا مختصراً بھی ذکر کیا جائے تو ایک کتاب مرتب ہو جائے۔ گجرات میں اردو ادب کی تاریخ بہت روشن ہے۔ بہت سے استاد شعراء ایسے پیدا ہوئے جن کے تلامذہ کا حلقہ وسیع سے وسیع تر رہا۔ انہی استاد شعراء میں سے ایک نام فخر گجرات جناب فخر قادری احمد آبادی کا بھی ہے، جنہوں نے نہ صرف احمد آباد میں بلکہ گجرات کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں اردو کی شمع کو روشن کیا۔ بڑی لطیف طبیعت پائی تھی، فلسفہ عدم تشدد کے علمبردار تھے۔ ان کی شاعری اس کے آئینہ دار ہے۔ ان کا ایک کلام پیش خدمت ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ محبت کا علمبردار ہوں میں، محبت کا علمبردار ہوں میں، خود اپنا قافلہ سالار ہوں میں، ابھی محو تلاش یار ہوں میں،
गुबारे पूछो बाजार हूँ मैं, न मजनू हूँ न सौदाई किसी का, अबथ रुसवा सरे बाजार हूँ मैं, बजाए फक्र साकी को भी जिस पर, वही मस्ते मैं पिंदार हूँ मैं। मुकर्रम इस्लामी, रहमत अमरोही गुजरात की उर्दू शायरी के हवाले से बहुत ही मोतबर नाम है, लेकिन उनके जिक्र से पहले उनके उस्ताद के हुजूर चलते हैं, जिन्हें तारीख राज सिद्दीकी के नाम से याद करती है। तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक थे। उनके अदबी ज़ौक़ और शेरी सलाहियत से सैकड़ों लोगों ने इस्तिफादा किया। फारसी में भी तबाज़ुमाई करते थे, लेकिन उर्दू में बहुत खूबसूरत शायरी करते थे। फनी नज़ाकतों का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन अफसोस उनका कोई मजमूए कलाम शाये न हो सका। कुछ अशर आपकी समातों के हवाले हैं। शेर देखें, राज़े तौबा पे फिर गया पानी, राज़े तौबा पे फिर गया पानी, कोई छींटा जो आसमां से गिरा, मेरी नजरों ने चुन लिया उसको, फूल जो दस्ते बागबान से गिरा। 20वीं सदी के शुआरा के कलाम का मुताला करते हैं तो महसूस होता है कि शायर ने जिंदगी को बहुत करीब से परखा है, एक बारीकी से उसका मुताला किया है। पुरकशिश मज़ामीन को आसान ज़बान और आम फहम अल्फाज में इस तरह बयान कर दिया है कि शेर बगैर किसी सबका मनसूबाबंदी के जहन में महफूज हो जाए। इस सिलसिले का एक नाम आली जनाब खलीश मौलवी साहब का है। उनका एक शेर देखिए कि दिल लगाना बुरा नहीं, लेकिन दिल लगाना बुरा नहीं, लेकिन लोग मिलते नहीं तबीयत के। इस कदर आसान और सलीस ज़बान में कहा गया शेर उर्दू अदब में अपने आप अपना मकाम बना लेता है और इस ख्याल खाम को भी रद्द करता है कि गुजरातियों की उर्दू अच्छी नहीं होती या गुजरात में अच्छी शायरी पैदा नहीं हो सकती। उर्दू शायरी में एक बड़ी तादाद में अशार जिंदा रहे और ज़रूर अमसाल बने। खलीश मौलवी साहब का ये शेर भी ऐसा ही है। बड़ी सख्त और मुश्किल बहरों के अलावा आसान और छोटी बहरों में भी गुजरात में उम्दा शायरी हुई है। मैं इस ख्याल और मनसूबाबंद तरीके से फैलाई गई गलत फहमी को भी रद्द करता हूँ कि 20वीं सदी में शायरी और गजल के नाम पर गुजरात से सिर्फ एक या दो या चंद नाम ही लिए जा सकते हैं। हैरत यह है कि उर्दू शायरी को लेकर एक बड़ी तादाद अच्छे शुआरा की दिखाई देती है, जो अपने आप में एक अपील रखती है, एक अंजुमन है और इस बात की मुंतज़िर रही कि कभी उन पर सर्फ़े कलम किया जाए, मगर उन्हें दानिस्ता तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उन शुआरा का कहा गया कलाम अपनी एक दुनिया रखता है और इस बात का पूरा यकीन है कि एक न एक दिन अपनी भरपूर ताकत के साथ सामने आएगा। 1950 के बाद गुजरात की शायरी एतमाद से भरपूर और अपने अंदर एक वसी और सोचने पर मजबूर कर देने वाला तजुर्बा रखती है। शायरी में मुतअद्दिद शुआरा ने निहायत साफगोई से काम लिया है। उन्हीं उस्ताद शुआरा में एक मोतबर नाम खुदादार खां वहशी का आता है। उनका शेर देखिए और सोचिए कि जिंदगी की कड़वी सच्चाई को किस सलीके से और किस हुनरमंदी पर मुश्तमिल दावे के साथ उन्होंने हमारे सामने रखा है। शेर देखिए कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है कौन। कुछ अशार तो ऐसे निकल कर सामने आते हैं जो पुरजोर तरीके से गजल की नुमाइंदगी करते हैं। उन अशार को उर्दू अदब में कहीं भी रखा जा सकता है। इस जिम्मे में उस्ताद शायर शुर इलाहाबादी का शेर देखें और महसूस करें कि किसी चीज की तामीर कितनी मुश्किल से होती है। अर्ज करते हैं कि खून कितनी बहारों का पिया नौ के कलम ने, खून कितनी बहारों का पिया नौ के कलम ने, तब जाके कहीं आपकी तस्वीर बनी है। 20वीं सदी की गुजरात की बेहतरीन उर्दू शायरी में इस शेर का शुमार किया जा सकता है। शीशे और पत्थर के इस्तिआरे उर्दू शायरी में जावजा नजर आते हैं। शम्स अहमदाबादी के यहाँ भी उनका बरमहल इस्तेमाल हुआ है। इस शेर में उन्होंने अपनी एक पोजीशन और अपने साथ हुए खिलवाड़ को जहाँ पेश किया है, वहीं अपने खदशात का इजहार भी निहायत सलीके से किया है। क्या कहते हैं कि अब मुझे नींद में पहना दिया शीशे का लिबास। सुनिए, अब मुझे नींद में पहना दिया शीशे का लिबास, कोई माले न सदाओं के नुकेले पत्थर। इसी सिलसिले की एक और कड़ी उस्ताद शायर मोहम्मद नजीर नसीरी फैजाबादी की एक गजल के 3 अशार में पेश करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अशार आपको बोर नहीं करेंगे। गालिब की गजल पर गजल कही है और आप वाकिफ हैं कि गालिब की गजल पर गजल कहना और वो भी कामयाबी के साथ, ये भी एक बड़ी बात है। क्या कहते हैं, खून रगों में है अभी जितना भी चाहे ले ले, खून रगों में है अभी
जितना भी चाहे ले ले, पाँव हो जाएंगे मोहताज यकीना मेरे बाप। बिजलियों की है उछल कूद मेरे पीने तक, फूट के रोएगी सावन की घटा मेरे बाद। किसी के शेर पर शेर कहना एक बात है और गालिब के शेर पर शेर कहना दूसरी बात है। यहाँ नसीरी फैजाबादी ने पूरे एहतजाज के साथ न सिर्फ शेर कहा है बल्कि मक्ता का शेर कहते हुए गालिब को एक तरफ सवालात के घेरे में खड़ा कर दिया है तो दूसरी तरफ उस कुर्बानी के लिए उन्होंने अपने आप को बिला शर्त पेश भी कर दिया है। इस तरह गुजरात से उर्दू शायरी को अपना एक यादगार और बाकी रहने वाला मक्ता भी दिया है। शायद शेर देखिए मक्ते का, कहते हैं कि हे नसीरी का मका कैसे कहा गालिब ने, हे नसीरी का मका कैसे कहा गालिब ने, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। बेहतरीन शेर। बारहा एक से होने वाले तजुर्बात आदमी को थका देते हैं और कभी कभी वो एक ऐसे तजुर्बे से हमकिनार होता है जिसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। लिहाजा नादिम इंदौरी की तरह एक आम आदमी के पास ये कहने के सिवा कोई चारा नहीं रहता कि जानवर के काट लेने का तदारुक है मगर, जानवर के काट लेने का तदारुक है मगर आदमी को आदमी खाए तो उसका क्या इलाज। हर शायर ने हमेशा चोट खाई है और चोट खाने के बाद ही उसकी शायरी दुनिया में नुदरत पैदा हुई है, लेकिन चोट खाने का तजुर्बा क्या होता है अगर उसकी तहकीक की जाए तो नफीस दामपुरी का ये शेर हमारी तलाश का जवाब बन सकता है। एक सच्ची बात कितनी खामोशी के साथ उन्होंने कही है। शेर देखे कि ये बता सकते हैं महसूस ही करने वाले, ये बता सकते हैं महसूस ही करने वाले, चोट लगती है कहाँ दर्द कहाँ होता है। मुकर्रम सामीईन, रिवायती लबो लहजा और अंदाज फिक्र से हटकर जब गुजरात में उर्दू शायरी होने लगी तो उसमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अलवी का सामने आया। मोहम्मद अलवी के साथ साथ कुछ शुआरा ने जदीद शायरी का दामन संभाला और उर्दू शायरी को नए तस्वुरात से रोशनास कराया। इस कबील से गुजरात से जो नाम उभर कर सामने आए उनमें मोहम्मद अलवी और आदिल मंसूरी के साथ साथ रशीद अफरोज, कयूम कवल, चुन्नू मोदी, इरशाद, रियाज लतीफ, तनवीर सिद्दीकी और सादिक नूर के नाम काबिल जिक्र हैं। उन शुआरा ने आजाद नज़मों के साथ साथ जदीद उर्दू गजल को भी अपने हुनर से अपने कलमस में फैलाया और उसे एक नई बुलंदी अता की। इस ज़िम्न में मोहम्मद अलवी एक ऐसा कामयाब नाम रहा जिस पर मुल्क और बैरून मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े अदीबों ने न सिर्फ अपनी तवज्जो दी बल्कि निहायत खलूस के साथ मज़ामीन भी लिखे और उर्दू की जदीद शायरी में मोहम्मद अलवी का मकाम कबूल भी किया। साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी ने मोहम्मद अलवी को गौरव पुरस्कार से भी नवाजा। मोहम्मद अलवी ने निहायत करीब की और दो टोक अंदाज में गजलें कही जो हमारे समाज से टकराने के साथ ही हमें खुशगवार तजुर्बे का एहसास दिलाती है। मोहम्मद अलवी के गजल के दो शेर देखें कि कभी तुझसे ऐसा भी याराना था। काफिये का मजा लीजिए इन दो शेरों के अंदर, बेहतरीन अंदाज से अशार कहे, कहते हैं कि कभी तुझसे ऐसा भी याराना था, मुसल्ले से उठना गवारा न था, बहुत खुश हुए आईना देखकर, यहाँ कोई सानी हमारा न था, यहाँ कोई सानी हमारा न था। मोहम्मद अलवी के साथ साथ एक बड़ा नाम आदिल मंसूरी का भी उभर कर सामने आया। हालांकि उन दोनों की घरेलू जबान गुजराती थी, उसके बावजूद उर्दू में जिंदा रहने वाली शायरी की, गजलें कही और यह साबित कर दिया कि अहले जबान होना ही बड़ी बात नहीं होती। आदिल मंसूरी जितना बड़ा नाम उर्दू शायरी में है उतना ही बड़ा नाम गुजराती शायरी में भी है। उनके कलाम का नमूना देखें, क्या कहते हैं कि जो चुपचाप रहती थी दीवार पर वो तस्वीर बातें बनाने लगी, बिस्मिल की तड़पने की अदाओं में नशा था, मैं हाथ में तलवार लिए झूम रहा था, क्यों चलते चलते रुक गए वीरान रास्तों, तन्हा हूं आज में जरा घर तक तो साथ दो, घर से मेरे कदम जो गली की तरफ बढ़े, दरवाजे पूछने लगे साहिब किधर चले। जदीद शायरी और गजल में यह भी हुआ कि आवाम की बात आवाम के लबो लहजे में की गई, बहुत भारी भरकम अल्फाज और मुहावरात का इस्तेमाल नहीं किया गया। निहायत साफ और सलीस जबान जो बदलते वक्त के हमरा अपने अंदाज में ढलती चली गई, उसने अपने एक नए मिजाज का एहसास दिलाया। हालांकि इस नए अंदाजे फिक्र के सामने पूर्वों की शायरी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही ये कभी मुमकिन है। ये और बात है कि जदीद रंग में कहने वालों को तानों और दिल शिकनी का शिकार भी होना पड़ा और उन्हें जल बुनकर जदीदिये भी कहा गया, मगर ये सिलसिला रुका नहीं और कयूम कवल ने कुछ इस अंदाज में अपना जदीद रंग दिखाया। क्या कहते हैं कि मेरे साये से कतरा कर गया है, तेरा एहसास कब से मर गया है, जंजीर मेरे नाम की खींची गई जहां,
तारीफ की ट्रेन वहीं पर ठहर गई। हाल उसका चलो पूछें कि आज उसकी तरफ से क्यों अपनी तरफ कोई भी पत्थर नहीं आया। 20वीं सदी के अजीम शुअरा में से सिर्फ चंद शुअरा का जिक्र आपके सामने पेश किया है, वरना फहरिस्त में तकरीबन 125 से ज्यादा शुअरा के नाम शामिल हैं। लेकिन हैफ सदहैफ उनमें से अक्सर शुअरा गोशे तन्हाई में ही रहे और दारे फानी से कुछ कर गए, लेकिन किसी ने उनकी तरफ इल्तिफात नहीं किया। उसकी एक वजह मेरे नाकिस इल्म में यह आती है कि बदकिस्मती से 20वीं सदी में उर्दू के हवाले से मैदान सहावत खाली नजर आता है। पूरी 20वीं सदी में 10 से 12 अखबार और रिसाले गुजरात से मंजर आम पर आए और एक अखबार के अलावा किसी ने 1.5-2 साल से ज्यादा उम्र नहीं पाई, जिसके सबब शुअरा की तख्लीकात आवाम तक नहीं पहुंच सकी। ये है 20वीं सदी में गुजरात के उर्दू अदब और शायरी की मुख्तसर तारीख। अपने शेर के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ कि एक शब-ए वस्ल फिर सजाने को, एक शब-ए वस्ल फिर सजाने को क्यों न ऐ दोस्त हम जुदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।